My dear students, once again welcome to all of you. Students, in this lecture we are going to learn application of simultaneous equations. Students, what do you mean by application of simultaneous equations? Student, it means all those concepts, all those formulas, all those methods which we have studied in this lesson, how to apply these. Students, in this exercise, in this practice set, questions are given that in word problem form. ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म में दिया रहेगा. इट मीन्स स्टूडेंट्स इन सेंटेंस फॉर्म. देन फर्स्ट वी विल स्टडी द क्वेश्चन केयरफुली एंड वी फ्रेम टू लीनियर इक्वेशंस. ओके स्टूडेंट्स, वी विल फ्रेम टू लीनियर इक्वेशंस. आफ्टर फ्रेमिंग two linear equations by taking two variables, students, we can solve with any method. Students, you know we have total 4 methods. Elimination by equating the coefficient method, second method is elimination by substitution method, and third method is graphical method, and you know fourth method is Cramer's rule. Okay student, तो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो सेंटेंस फॉर्म में दिया रहेगा. सेंटेंस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम. वर्ड प्रॉब्लम मतलब हमको इक्वेशन बना बनाया नहीं मिलेगा. इक्वेशन बना बनाया नहीं मिलेगा. क्वेश्चन को रीड करना है, उसमें दो कंडीशन रहेगा, दो अननोन क्वांटिटी रहेगी, उसमें कंडीशन रहेगा. कंडीशन से हम लोग दो इक्वेशन बनाएंगे. देन आफ्टर मेकिंग द इक्वेशंस वी कैन यूज एनी वन मेथड फॉर सॉल्विंग दैट टू इक्वेशंस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.5. हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा कि एक्चुअल में व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस. Student, your first question is, see on your screen, your first question is two numbers differ by 3. Student, differ means होता है difference. Two numbers differ by 3. The sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Find the numbers. Students, as you see in question, two unknown quantity we will be find two numbers, and student, you see in this question two conditions are given. दो कंडीशन दिया है. फर्स्ट कंडीशन इज two numbers differ by 3. it means student in this question two numbers are given and their difference is 3. मतलब दो नंबर दिया है और दोनों नंबर का डिफरेंस क्या है, 3 है. स्टूडेंट, इट मींस वन नंबर इज बिगर एंड अदर नंबर इज स्मॉलर. दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, 3. स्टूडेंट, दिस इज फर्स्ट कंडीशन. अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट कंडीशन वी विल मेक वन इक्वेशन, one linear equation containing two variables. And student, second condition is given that the sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Student, this is second condition. By using this second condition we will frame second linear equations by taking two variables, and after making equations we will solve by using any one method. Okay student, तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि हाउ टू राइट इट्स सॉल्यूशन. स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन टू अननोन क्वांटिटी वी विल फाइंड टू नंबर्स. वन नंबर इज बिगर नंबर एंड अदर नंबर इज स्मॉलर नंबर. सो वी विल हैव टू राइट लेट रिक्वायर्ड नंबर्स. स्टूडेंट, लेट रिक्वायर्ड नंबर्स बी एक्स एंड वाई. तो हमने क्या कंसीडर कर लिया, दो नंबर्स हमने कंसीडर कर लिया. एक नंबर x, दूसरा नंबर क्या, y. बट स्टूडेंट, आउट ऑफ दीज टू नंबर्स वन नंबर इज बिगर नंबर एंड अदर नंबर इज स्मॉलर नंबर. उसको तो हमने इस सेंटेंस में नहीं लिखा, तो हम इसको मैथमेटिकली यहां पर लिखेंगे वेयर x इज बिगर देन y. अंडरस्टूड? बिगर देन x is bigger than y. It means x is bigger number and y is a smaller number. Student, first condition is given that two numbers differ by 3.
मतलब दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है, 3 है। देन वी विल राइट फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन क्या है? डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स इज 3 एंड नाउ राइट इट्स first condition, write in mathematical form. This is x minus y is equal to 3. Let this is equation number 1. Okay student, एक कंडीशन जो फर्स्ट कंडीशन जो पहला कंडीशन दिया था उससे हमको एक इक्वेशन मिल गया, x minus y is equals to 3. And student second condition is given that sum of, sum मतलब क्या होता है? प्लस होता है। sum मतलब प्लस होता है। Twice the smaller number. Student, we have to consider two numbers, x and y, where x is bigger number and y is smaller number. Twice the smaller number. Student, this is smaller number. Its twice is 2y. Twice means double. Two times of the smaller number. This is 2y. 2y means twice of the smaller number. किसको किसको प्लस करना है, किसका किसका सम लिखना है, सम ऑफ मतलब प्लस। ओके, अब किसका किसका प्लस, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। स्टूडेंट, दिस इज ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। स्टूडेंट, दिस इज ग्रेटर नंबर एंड इट्स थ्राइस इज 3x। थ्राइस you know na, thrice means 3 times of the number. Okay, this is thrice of bigger number and this is twice of the smaller number. Sum is given that 19. Student, this equation making by second condition. So here we will write from second condition, from second condition. What is the second condition? Second condition से हमने इक्वेशन बनाया, the sum of twice the bigger number and thrice the smaller number and sum is given that 19. So this is equation number 2. Student, after making these two linear equations containing two variables, we can use any one method. अब इसके बाद हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कोई भी एक मेथड अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, उसमें हमको ग्राफ पेपर चाहिए, इसके लिए वो मेथड हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो फर्स्ट मेथड क्या होता है? बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड। तो चाहे तो कोएफिशिएंट को इक्वल कर लो, चाहे एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो, चाहे तो फिर कौन सा मेथड, क्रैमर रूल भी यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड। एंड यू सी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 1 कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1 एंड इन इक्वेशन 2 कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3। स्टूडेंट, कोएफिशिएंट ऑफ x आर नॉट इक्वल एंड सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ y is -1 and coefficient of y is 2. Student, coefficient of y are not equal, are also not equal. Then we will equate any one coefficient, or you can equate or coefficient of x or you can equate coefficient of y. चाहे x का इक्वल करो चाहे y का इक्वल करो, लेकिन करोगे किसका? जिसका आपको इजी लगता है। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए, यहां 2i है, अगर इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां 2i आ जाएगा, तो इसका y का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। आप x का भी इक्वल कर सकते हैं इक्वेशन 1 बाय मल्टीप्लाइंग बाय 3। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग y का इक्वेट कर रहे हैं। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 वी गेट। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट, देन वी गेट 2 1 जा 2, 2x and here minus 2y and this is 3, 2 3 ja 6. Let this is new equation 3rd and you see equation 2 and equation 3, in both the equations coefficient of y are equal. दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल हो गया, y का
2 है, y का 2 है, बट दे हैव अपोजिट साइन, दोनों का साइन क्या है, अपोजिट साइन है। अच्छा, कोएफिशिएंट को इक्वल करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको कैंसिल करते हैं, और कैंसिल कब होता है, इफ टर्म्स हैव अपोजिट साइन, अगर दोनों का साइन अपोजिट होता है तो कैंसिल होता है। तो दोनों का साइन तो पहले से अपोजिट है, तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों को प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, माइनस नहीं कर सकते। माइनस क्यों नहीं कर सकते, जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो साइन तो पहले से अपोजिट है, इसके लिए हमको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो एडिंग इक्वेशन 2 and 3, नाउ एडिंग equation 2 and 3. Okay student, now adding equation 2 and 3. What is the equation 2? This is equation 2, 3x plus 2y, 3x plus 2y is equals to 19. This is equation 2. And what is the equation third? 2x minus 2y, 2x minus 2y is equals to 6. This is equation थर्ड। जब हम प्लस करते हैं, when we are going to add any two equation, then its sign change, इसका साइन चेंज होता है, नो स्टूडेंट। जब हम लोग दो इक्वेशन को प्लस करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता। साइन चेंज कब होता है, जब हम लोग माइनस करते हैं, तो साइन चेंज नहीं होगा। तो 3x प्लस 2x इज 5x एंड दिस प्लस 2y एंड माइनस 2y, ये दोनों कैंसिल हो गया। 19 प्लस 6 इज 25, therefore x is equal to 25. This 5 taken this side becomes in division, 5 1 ja 5 5 ja, so we get x is equal to 5. x की वैल्यू मिल गई। आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल, बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2 और इन इक्वेशन थर्ड। ओके स्टूडेंट, तो किसी एक इक्वेशन में हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 1 में कर दो या 2 में कर दो या 3 में कर दो। नाउ पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट कर दूं, चलो 1 में पुट कर दे रहे हैं। पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। व्हाट इज द इक्वेशन 1? x माइनस y, this is equation 1, x minus y and value of x is 5, then this is 5 minus y is equals to 3, then minus y is equal to 3, this 5 taken this side becomes minus 5, therefore this minus y, 3 minus 5 is student, these two numbers having opposite sign, अगर opposite sign होता है then we subtract smaller number from bigger number and we have to write the sign of bigger number. What is the bigger number? 5, its sign is minus, then 5 minus 3 is 2, दोनों साइड में माइनस पहले है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y is equal to 2. Student, here x is 5 and y is equal to 2, और हमने क्या कंसीडर किया था, required numbers are x and y, so we get the required numbers are 5 and 2, and final answer is therefore the required numbers are 5 and 2. ओके स्टूडेंट, आंसर क्या मिल गया, जो दो नंबर हमको चाहिए था वो कौन कौन से नंबर है, एक नंबर 5 है, दूसरा नंबर क्या है, 2 है। बट हाउ टू चेक योर आंसर इज करेक्ट और नॉट? स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन एनी वन कंडीशन। स्टूडेंट, फर्स्ट कंडीशन इज गिवन दैट टू नंबर्स डिफर बाय 3, दो नंबर्स दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है, एंड यू चेक फ्रॉम हियर 5 and 2 आर टू रिक्वायर्ड नंबर्स, 5 और 2 ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 3 आएगा। सो स्टूडेंट, आवर आंसर इज करेक्ट। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी योर सेकेंड क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग। Student, question is given that this is a diagram of a quadrilateral and here I am a rectangle। यहाँ क्या लिखा है स्टूडेंट, एक डायग्राम बना है और इस डायग्राम के अंदर क्या लिखा है, I am a rectangle। स्टूडेंट, इट मीन्स दिस quadrilateral is a rectangle।
Okay student, this quadrilateral is a rectangle and its sides are given. This side is given that 2x plus y plus 8, and student this side is given that, this side means this is given that 2y, and length of this side is given that 4x minus y, and this side is given that x plus 4. ओके स्टूडेंट, और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो, एंड आल्सो फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया. माय मींस स्टूडेंट दिस रेक्टेंगल. ओके, और यहां पर देखो क्या लिखा है, आई एम ए रेक्टेंगल. I am a rectangle means I am not a rectangle. This diagram, this quadrilateral is a rectangle. Okay student, this quadrilateral is a rectangle and its sides are given. Then we will find the values of x and y. x और y की वैल्यू निकालना है. After getting the values of x and y, we will find पेरीमीटर एंड एरिया. किसका पेरीमीटर, किसका एरिया? पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. स्टूडेंट, हाउ टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल एंड हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल? रेक्टेंगल, इफ रेक्टेंगल इज गिवन, देन हाउ टू फाइंड इट्स पेरीमीटर, एंड देन हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल? स्टूडेंट, फार्मूला इज, व्हेन वी फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, देन फार्मूला इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे और हम लोग इसका पेरीमीटर निकालेंगे. एंड आफ्टर गेटिंग पेरीमीटर वी विल फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. स्टूडेंट, व्हाट इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ओके स्टूडेंट, मतलब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? पेरीमीटर. किसका पेरीमीटर? रेक्टेंगल का. कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? ये फार्मूला यूज करेंगे. और एरिया कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग दिस फार्मूला, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ओके स्टूडेंट, बट बिफोर फाइंडिंग पेरीमीटर एंड एरिया, फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. पहले हम लोग क्या निकालेंगे? x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? स्टूडेंट, दिस इज अ रेक्टेंगल एंड वी नो दैट अ प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ओके स्टूडेंट, opposite sides of a rectangle are equal. So using this property we frame two linear equations. After framing two linear equations, we can solve these two linear equations by using any one method. Okay students, तो चलिए मैं इसको यहां से रब कर दे रहा हूं और आप यहां क्वेश्चन जो दिख रहा था आपने क्वेश्चन लिख लिया. ओके, तो क्या क्या हमको फाइंड आउट करना है? एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और एरिया फाइंड आउट करना है. तो चलिए मैं इसको यहां से रब कर दे रहा हूं. नाउ स्टूडेंट्स, वी नो दैट opposite sides, we know that opposite sides of a rectangle are congruent. Okay student, this is the property of rectangle. Opposite sides of a rectangle are congruent, and you see in this diagram opposite sides are, student, this 2y, its opposite side is x plus 4, means this side and this side are equal and this side is equal to this side. तो अपोजिट साइड को हम लोग इक्वल करेंगे, इस अपोजिट साइड को इसके इक्वल कर देंगे, एक इक्वेशन मिल जाएगा, और इस साइड को इसके इक्वल कर देंगे, सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा. नाउ इक्वेटिंग द अपोजिट साइड्स, दिस 4x minus y, student, this side is equal to this side and this side is 2x plus y plus 8. Now variables are taking in left hand side, and in left hand side already 4x minus y is there. This 2x taken this side becomes minus 2x and this plus y taken this side becomes minus y and this is equal to 8. कांस्टेंट टर्म को कहां लिखते हैं? राइट हैंड साइड में लिखते हैं. Now see here, this 4x minus 2x, 4x में से 2x माइनस कर दिया, we get 2x, and this minus y, student, this is minus 2y. If numbers having same sign, then we have to write the same sign and plus the numbers.
स्टूडेंट दिस इज 1y, दिस इज 1y, इसका भी साइन माइनस, इसका भी साइन माइनस। जब सेम साइन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, वही साइन लिखते हैं और नंबर्स को, टर्म्स को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो दोनों का साइन माइनस है, इसके लिए हमने माइनस लिख दिया। यहां ऐसा मत करना माइनस इंटू माइनस प्लस, इंटू नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं। So these two terms having same sign, we have to write the same sign, and 1y, after adding 1y, we get 2y is equals to 8. Okay student, and you see here this is 2x and this is 2y and this is 8. Each numbers cancel out by 2. So student, this equation dividing by 2. Now this equation dividing by 2, इस इक्वेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। नहीं 2 से डिवाइड करोगे तो भी चलेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन हमारा छोटा हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म इज 2x, 2x को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, लाइक दिस। फर्स्ट टर्म इज 2x डिवाइड बाय 2 कैंसिल, वी गेट x। ओके स्टूडेंट, एंड सेकेंड टर्म इज 2y, when 2y divide by 2 cancel out by 2, we get minus y. And the right hand side 8 is there, 8 is divided by 2, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2 4 जा, in right hand side we get 4. let equation number 1, let this is equation number 1. तो एक इक्वेशन मिल गया after equating these two sides, and now we equate these two sides. okay student, एक अपोजिट, one pair of opposite sides, when we equate one pair of opposite sides, we get one linear equation containing two variables, and then after this we equate second pair of opposite sides. Second pair of opposite sides are x plus 4 and x plus 4. This side is equals to this side. okay student, x plus 4 is equals to 2y, and this is x. This plus 2y taken in left hand side becomes minus 2y is equals to plus 4. Plus 4 taken this side becomes minus 4. let this is equation 2. अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आप देख रहे हैं ना, दो लीनियर इक्वेशन हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहला तो यही पूछा था ना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ओके स्टूडेंट, नाउ सी इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, यहां भी एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, तो हमको इक्वेट करने की जरूरत नहीं है। अब देखना है कि कैंसिल कैसे होगा। जब कोएफिशिएंट इक्वल होता है तो उसके बाद हम लोग क्या चेक करते हैं कि इसको कैंसिल कैसे करेंगे। कैंसिल कब होता है, इफ टर्म्स हैविंग अपोजिट साइन। तो क्या दोनों का साइन अपोजिट है, ए भी प्लस एक्स है, ए भी प्लस एक्स है, साइन अपोजिट नहीं है, मतलब साइन चेंज करना है। और जब साइन चेंज करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो आइए किसी एक इक्वेशन में से एक को माइनस कर देते हैं, 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं। नाउ subtracting equation 2 from 1. ओके स्टूडेंट, किसको माइनस कर रहे हैं, 2 को। subtracting equation 2 from 1 में से 2 को माइनस कर रहे हैं। देन स्टूडेंट फर्स्ट राइट डाउन इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1, x minus y, this is equals to 4, this is equation 1, and after this write down equation 2. what is the equation 2, x minus 2y, this is equals to minus 4, this is equation 2. क्या कर रहे हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइन चेंज होता है, ए प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, ए माइनस है तो क्या होगा, प्लस, ए माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा। x and this minus x cancel out by each other, and this is minus y, this is plus 2y. okay student, minus y plus 2y माइनस y, मतलब 2y में से 1y माइनस करना है। देन स्टूडेंट वी गेट y, दिस इज इक्वल टू 4 plus 4 is 8, we get the value of y.
Okay student, after getting the value of one variable, how to find the value of other variable? By substituting this value in any one equation, in equation 1 और in equation 2. तो किसमें हम लोग पुट कर दें? चलो 1 में पुट कर देते हैं. Put y is equal to 8 in equation 1. Put y is equal to 8. Put y is equal to 8 in equation 1. किस में पुट कर रहे हैं? इक्वेशन 1 में. व्हाट इज द इक्वेशन 1? x माइनस वाई, x माइनस वाई एंड y इज 8. दिस इज इक्वल्स टू 4. This is equals to 4. Therefore, x is equal to 4. This minus 8 taken this side becomes plus 8. So we get x is equal to 12. 4 plus 8 is 12. तो फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, फर्स्ट पार्ट क्या था? फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया. क्या मिल गया? x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू कितना मिल गए? 8. एंड second part of the question, find the perimeter and also find the area of the rectangle. Student, for finding perimeter and for finding area, first we find length and breadth of the rectangle. Okay student, तो पहले आप वीडियो को पॉज करके इतना आप लिख डालो. Okay student, now we will find length and breadth of the rectangle. क्यों हमको फाइंड आउट करना है लेंथ और ब्रेड्थ? क्योंकि हमको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और एरिया फाइंड आउट करना है. ओके स्टूडेंट, फॉर फाइंडिंग पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल वी विल यूज द फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ. हमको लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए. इसके लिए पहले हम लोग लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट कर लेंगे. ओके स्टूडेंट, नाउ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, length of the rectangle, length of the rectangle, length of the rectangle, let denoted by L. Okay student, what is the see this diagram. Okay student, see this diagram. Length, what is the length of this rectangle? Student, this is the length. These two sides represent the length of the rectangle. ये दोनों साइड क्या रिप्रेजेंट करता है? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. ओके स्टूडेंट, कोई भी इसमें आप कंसीडर कर लो. 4x माइनस वाई यहां पर लिख लो. तो लेंथ हमने क्या लिख दिया? 4x माइनस वाई. अच्छा, इसको क्यों नहीं लिखा? अरे दोनों तो इक्वल ही है ना. हमको लेंथ फाइंड आउट करना है. चाहे इसको कंसीडर कर लो, चाहे इसको कंसीडर कर लो. दोनों में से कोई एक कंसीडर कर लो, सेम आंसर आपको मिलेगा. ओके स्टूडेंट, नाउ दिस 4 इंटू एक्स. x की वैल्यू कितना है? 12 है. माइनस y एंड y इज 12. दिस 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 इज 48 माइनस 8. दिस इज इक्वल टू 40. तो L इज इक्वल टू कितना आ गया? 40. मीन्स लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 40. ओके स्टूडेंट, नाउ आफ्टर दिस वी विल फाइंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल. अच्छा, यहां पर हमने लेंथ क्या कंसीडर किया? 4x माइनस वाई. 4x माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8. दोनों ही लेंथ है और दोनों ही इक्वल है. अगर आप इसमें x y की वैल्यू पुट करोगे तो भी आंसर यही आएगा. ओके स्टूडेंट, नाउ ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, नाउ ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, नाउ ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल. Breadth of the rectangle is, student, 2y and x plus 4. Both are equal. Then we can consider any one. 2y कंसीडर कर लो या x plus 4 कंसीडर कर लो, सेम आंसर मिलेगा. तो चलो यहां से 2y कंसीडर कर लिया. अगर आप x plus 4 भी यहां कंसीडर करोगे स्टूडेंट, देन वी गेट द सेम आंसर. ओके स्टूडेंट, नाउ 2y, y की वैल्यू बताओ. y की वैल्यू कितना है? 8 है. ओके स्टूडेंट, y इज 8. देयरफॉर 8 2 जा 16 और ब्रेड्थ कितना आ गया? 16. आफ्टर गेटिंग द लेंथ एंड ब्रेड्थ वी कैन फाइंड इजिली इट्स पेरीमीटर एंड इट्स एरिया. नाउ राइट डाउन द फार्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, perimeter of rectangle 2 into length plus breadth. 2 into length, length is
40 and breadth is 16. Therefore 40 plus 16. Therefore this is equal to 2 into 40 plus 16 is 56. मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 1 कैरी तो 112. पेरीमीटर कितना आ गया? पेरीमीटर इज 112 यूनिट्स. ओके स्टूडेंट, एंड आफ्टर गेटिंग पेरीमीटर वी विल फाइंड एरिया. किसका एरिया? रेक्टेंगल का. एंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ इज 40, breadth means क्या? b, and b is 16. Okay student, now 16 into 40, 16 4 ja 64 and this 0 640. This is area. अब इसका यूनिट क्या लिखोगे? एरिया का यूनिट क्या होता है? स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, बट यूनिट सेंटीमीटर मीटर आर नॉट गिवन, सो वी हैव टू राइट द यूनिट स्क्वायर यूनिट. Okay student, square units. So these are the answer. क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड आल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. ओके स्टूडेंट, नाउ पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द आंसर, राइट डाउन द सॉल्यूशन. तो फाइनल आंसर लास्ट में लिख देना. फाइनल आंसर क्या लिखोगे? x की वैल्यू कितना आया है? x की वैल्यू है 12, y की वैल्यू कितना है? 8 एंड पेरीमीटर इज 112 यूनिट्स एंड एरिया इज 640 स्क्वायर यूनिट्स. ओके स्टूडेंट, नाउ नोट डाउन द सॉल्यूशन. नाउ स्टूडेंट्स सी योर थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज द सम ऑफ फादर्स एज and twice the age of his son is 70. If we double the age of the father and add it to the age of his son, this sum is 95. Find their present ages. Okay student, this is your third question. Now first pause the video and note down the question. Okay student, what is the question? The sum of father's age, the sum of father's age, sum मतलब plus, age of father's age and twice the age of his son is 70. Student, in this question father and sons are there and we will find the present age of fathers and his son. Okay student, पहले हम लोग इसको रफली समझ लेते हैं. फादर और सन दो इसमें है, फादर एंड हिज सन. Okay student, let present age of father be x and present age of son is y. Okay student, this one is clear ना. हमेशा एक चीज याद रखो, जब भी एज फाइंड आउट करते हैं तो हमेशा प्रेजेंट एज फाइंड आउट करते हैं. ओके स्टूडेंट, सो वी हैव टू कंसीडर प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x years and present age of his son is y years. Now read the condition very carefully. Student, sum of father's age, सम मतलब क्या? प्लस. किसको प्लस करना है? अब इसको ध्यान से रीड करना है. सम ऑफ फादर्स एज मतलब फादर की एज को प्लस करना है. तो फादर की एज कितना है? x है. अब इसमें क्या प्लस करना है? एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन. एज कितना? सन की एज कितना लिया है? y. इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा? 2y. Age is given that 70. Sum of father's age, sum मतलब plus, sum of father's age and twice the age of his son is 70. Student, from first condition this is linear equation. ओके स्टूडेंट, जो पहला कंडीशन दिया है उससे हम लोग ऐसा लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं. तो ये पहला इक्वेशन मिल जाएगा. एंड स्टूडेंट सेकेंड इज इफ वी डबल the age of the father, if we double the age of the father, fathers की एज कितना लिया है? x. if we double the age of father, अगर इस fathers की एज को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा. and add it to the age of his son, किस में ऐड करना है?
टू द एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू 95। तो इस तरह से हमको दो लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा और इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो नाउ वी विल राइट इट्स सॉल्यूशन। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x years, let present age of father be x years and his son be y years। ओके स्टूडेंट, ये समझ में आया क्या? जब भी एज हम लोगों को फाइंड आउट करना रहेगा तो हमेशा प्रेजेंट एज ही कंसीडर करते हैं। ओके स्टूडेंट, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x years and his son be y years from first condition। अब फर्स्ट कंडीशन से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। तो अभी हमने दोनों कंडीशन से आपको इक्वेशन बता दिया, तो एक बार फिर हम लोग देखते हैं। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। ओके स्टूडेंट, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड नाउ from second condition, what is the second condition? Student, second condition is if we double the age of the father, फादर्स की एज कितना लिया है? x लिया है, इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। एंड ऐड इट, इसको ऐड करना है किसमें? एज ऑफ हिज सन की एज कितना है? y इज 95। कितना हो गया? 95। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, अब ये दोनों इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है। आफ्टर सॉल्विंग दीज टू लीनियर इक्वेशंस वी गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। इट मींस वी गेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन। ओके स्टूडेंट, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2x coefficient of x is 2 and in equation 1 coefficient of x is 1 and in equation 2 coefficient of y is 1 and in equation 1 coefficient of y is 2। न तो x का कोएफिशिएंट इक्वल है और न तो y का, तो किसी एक का हम लोग इक्वल कर लेते हैं। तो चलिए इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। इक्वेशन 1 को किससे? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। देखो यहां भी 2x हो जाएगा एंड दिस इज ऑलरेडी 2x। Now multiplying equation 1, multiplying equation 1 by 2, we get equation 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से। Then we get 2x plus 2 2 जा 4y, this is equals to 70 into 2 is 140। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखो x का कोएफिशिएंट इक्वल हो गया, दिस इज 2x एंड दिस इज आल्सो 2x। कोएफिशिएंट ऑफ x आर सेम, दोनों का सेम हो गया। तो अभी क्या करना है? इसको कैंसिल करना है। और कैंसिल कैसे करते हैं? साइन अपोजिट होना चाहिए। अगर साइन अपोजिट नहीं है तो साइन चेंज करना पड़ेगा। और साइन चेंज कैसे होता है? जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। तो नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, हम लोग 3 में से 2 माइनस करेंगे। हमेशा जो बड़ा कोएफिशिएंट रहे उसमें से आप माइनस करो। नाउ subtracting equation 2 from equation 3। ओके स्टूडेंट, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 2 में से 3 माइनस करो, 3 में से 2 माइनस करो। आप किसी इक्वेशन में से किसी इक्वेशन को माइनस कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करें? subtracting equation 2 from equation 3। So first we have to write equation 3rd. Equation 3rd is 2x plus 4y, 2x plus 4y, this is equals to 140। this is equation number 3rd। and equation 2 is 2x plus 1y, 2x plus 1y, this is equals to 95। this is equals to 95। this is equation 2। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है? साइन
चेंज होता है। ये प्लस है तो क्या होगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो गया, एंड दिस इज प्लस बिकम्स इन माइनस। ओके स्टूडेंट, नाउ दिस 2x माइनस 2x कैंसल आउट बाय ईच अदर, एंड दिस 4y माइनस, अभी ये साइन हम लोग कंसीडर करेंगे, इससे मतलब नहीं है, प्लस से मतलब नहीं है, साइन चेंज हो गया ना, क्या हुआ माइनस, तो 4y में से 1y माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 3y, एंड दिस इज इक्वल्स टू 140 माइनस 95, 140 माइनस 95, 140 में से 95 माइनस कर दो, यहां 10 होगा, 10 माइनस 5 कितना आ गया 5, यहां पर कितना 13, 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4। नाउ 3y इज इक्वल टू 45, देयरफॉर y इज इक्वल टू दिस 45, दिस 3 टेकन दिस साइड बिकम्स इन डिवीजन, 3 से कैंसिल करेंगे कितना आ गया y इज इक्वल टू 15। आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल, बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन एनी वन इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन में इसको हम लोग पुट करेंगे। तो चलिए इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। नाउ पुट y इज इक्वल टू 15, पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1, किस में पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, क्या पुट कर रहे हैं y इज इक्वल टू 15, व्हाट इज द इक्वेशन 1, x प्लस 2y, x प्लस 2y एंड y इज 15 and this is equal to 70, this is equal to 70, now this is x plus 15 to the 30 is equal to 70, therefore x is equal to 70, this 30 taken this side minus 30, then x is equal to 40। okay student, तो दोनों वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू मिल गया 40, y इज इक्वल टू मिल गया 15। इट मींस क्या हमने कंसीडर किया, x को क्या कंसीडर किया है प्रेजेंट एज ऑफ फादर, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 40 इयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज 15 इयर्स। ओके स्टूडेंट, एंड राइट डाउन द आंसर, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ, देयरफॉर द प्रेजेंट age of father is 40 years, present age of father is 40 years and his son is, son का कितना एज मिला 15 years and his son is 15 years। ओके स्टूडेंट, अब आंसर कैसे चेक करोगे, now how to check your answer is correct or not, by substituting these values in any one condition। okay student, फर्स्ट कंडीशन क्या दिया था, फर्स्ट कंडीशन बताओ, the sum of father's age, the sum of father's age, जो चलिए मैं आपको आंसर चेक करने बताता हूं कि आंसर कैसे चेक करोगे। the sum of father's age, फादर्स की एज कितना है 40, सम क्या करना है twice the age of his son, सन की एज कितना है 15, इसका टॉइस करेंगे कितना 15 टू जा 30, कितना आना चाहिए 70, देखो 70 आ गया ना स्टूडेंट, इट मींस आंसर इज करेक्ट। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन। स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सी योर क्वेश्चन नंबर 4, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स डिनोमिनेटर, denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and the denominator are reduced by 6, find the fraction। okay student, fraction find out करना है, and you know in any fraction this is numerator and this is denominator, relationships between numerator and denominators are given। first condition is given, the numerator of a fraction is 4 more than twice its numerator। okay student, the denominator of a fraction, denominator of a fraction, denominator को क्या यहां पर लिखा अभी हमने फिलहाल n और d ले लिया है, अभी जब हम सॉल्व करेंगे तो x और y कंसीडर करेंगे। ओके स्टूडेंट, denominator is 4 more, जो denominator है ना वो 4 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 4, यानी कि 4 more than twice its numerator। okay student, its numerator is n, its twice is 2n। okay student, तो बहुत ध्यान से इसको समझना है कि इक्वेशन हम लोग कैसे बनाएंगे।
Okay student, now denominator is 4 more. Denominator is 4 more. मतलब डिनोमिनेटर जो है वो ज्यादा है. कितना ज्यादा है? 4. किससे ज्यादा है? ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर. तो न्यूमरेटर क्या है? n है. इसका ट्वाइस कितना हो गया? 2. ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर इज 2n. ज्यादा कौन है? डिनोमिनेटर. किससे ज्यादा है? ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर से. कितना ज्यादा है? 4. मतलब दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4. स्टूडेंट दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. अभी हम लोग इसकी जगह न्यूमरेटर की जगह क्या कंसीडर करेंगे? x. डिनोमिनेटर को क्या कंसीडर करेंगे? y. तो यहां पर कैसे बन जाएगा इक्वेशन? y माइनस 2x इज इक्वल टू 4. अंडरस्टूड ना दिस इक्वेशन? चलो वंस अगेन आई रिपीट इट. स्टूडेंट डिनोमिनेटर इज 4 मोर. डिनोमिनेटर जो है वो 4 ज्यादा है. किससे ज्यादा है? ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर. न्यूमरेटर के ट्वाइस से डिनोमिनेटर 4 ज्यादा है. मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है? 4 है. ओके स्टूडेंट, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. एंड नाउ सेकेंड कंडीशन इज गिवन. व्हाट इज सेकेंड कंडीशन? डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर becomes 12 times the numerator. 12 times the numerator. डिनोमिनेटर क्या किसके बराबर होता है? किसके इक्वल हो जाता है? 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रिड्यूस कर देते हैं. रिड्यूस कितना? रिड्यूस मतलब डिक्रीज करना है, माइनस करना है. कितना माइनस करना है? 6. इफ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर रिड्यूस्ड बाय 6. ओके स्टूडेंट, देन डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स ऑफ इट्स न्यूमरेटर. अंडरस्टूड ना दिस कंडीशन? तो यहां से एक इक्वेशन हमको मिल जाएगा. नाउ राइट इट्स सॉल्यूशन. let numerator be x and denominator of the fraction be y. Understood ना? Let numerator be x and denominator of the fraction be y. तो हमने क्या कंसीडर किया? न्यूमरेटर को x, डिनोमिनेटर को y. नाउ राइट इट्स फर्स्ट कंडीशन. नाउ फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? डिनोमिनेटर इज 4 मोर. डिनोमिनेटर अभी क्या कंसीडर किया है? डिनोमिनेटर क्या कंसीडर किया? y. डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर. Twice of its numerator. Numerator is x. Its twice is 2x. इसके twice से denominator is 4 more than twice of its numerator. Numerator का अगर हम लोग डबल करेंगे तो भी जो denominator है इससे 4 ज्यादा होता है. Means their difference is 4. Student, this is equation number 1. And now from second condition, from second condition, what is the second condition? If numerator and denominator reduced by 6. If numerator and denominator reduced by 6, then denominator becomes 12 times of its numerator. बात समझ में आ रही क्या? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर 6 कम कर दिया जाए तो न्यूमरेटर क्या लिया है? x. डिनोमिनेटर क्या लिया है? y. अगर दोनों को 6 से रिड्यूस कर दिया जाए मतलब कितना हो जाएगा? x माइनस 6. ये क्या हो गया? न्यूमरेटर. y माइनस 6 क्या हो गया? डिनोमिनेटर. देन डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स इट्स न्यूमरेटर. ओके स्टूडेंट, नाउ फ्रॉम सेकेंड कंडीशन denominator becomes 12 times. Denominator means y. This is becomes 12 times of numerators if both numerator and denominator reduced by 6.
अगर दोनों को 6 माइनस करते हैं तब एक कंडीशन होता है। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। दिस इज y माइनस 6 एंड दिस इज 12x। नाउ ओपन दिस ब्रैकेट बाय मल्टीप्लाइंग बाय 12x माइनस 12 6 जा 72। okay student, now this y, this 12x taken this side becomes minus 12x and in this side minus 72, this minus 6 taken this side plus 6, therefore चलिए इधर रफ कर दे रहा हूं। and now y minus 12x, this is equal to minus 72 plus 6। स्टूडेंट दीज टू नंबर्स हैविंग अपोजिट साइन, और जब अपोजिट साइन रहता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बट वी हैव टू राइट द साइन ऑफ बिगर नंबर। स्टूडेंट दिस वन इज बिगर, सो वी हैव टू राइट हियर माइनस 72 प्लस 6। माइनस करेंगे 72 में से किसको माइनस करेंगे, 6 को माइनस करेंगे। तो 6 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा माइनस करेंगे तो आई थिंक दिस इज 66। ओके स्टूडेंट, y माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 66। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशन रेडी हो गया, इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। एंड यू सी इन इक्वेशन 1 एंड इन इक्वेशन 2 कोएफिशिएंट ऑफ y in equation 2 is 1 and coefficient of y in equation is also 1। तो दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल है, हमको इक्वल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये देखना है कि कैंसिल कैसे होगा। स्टूडेंट नाउ these two terms having same sign, साइन चेंज होना चाहिए। साइन चेंज कैसे होगा, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग एनी वन इक्वेशन फ्रॉम अदर इक्वेशन। सो वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, subtracting equation 2 from 1। किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 से, किसमें से, इक्वेशन 1 में से। देन फर्स्ट वी हैव टू राइट द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इज y माइनस 2x, दिस इज इक्वल्स टू 4। स्टूडेंट दिस इज इक्वेशन 1। इसका मीनिंग समझ में आता है ना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम 1 में से। तो 1 को ऊपर लिखेंगे, इक्वेशन 2 इसके नीचे। व्हाट इज द इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 2, y माइनस 12x, दिस इज माइनस 66, दिस इज इक्वेशन 2। क्या कर रहे हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है। प्लस है तो क्या हो गया माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, y माइनस y ये कैंसिल हो गया। दिस इज स्टूडेंट दिस इज प्लस 12x एंड दिस इज माइनस 2x। दीज टू टर्म्स हैविंग अपोजिट साइन, और अपोजिट साइन में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 12x, दिस इज प्लस 12x माइनस 2x, वी गेट 10x। ओके, एंड इन दिस साइड प्लस 66 प्लस 4, दोनों ही प्लस है तो कितना आ जाएगा 70। Therefore x is equal to 70 and this 10 taken this side becomes in division, so we get 10 7 जा, x is equal to कितना आ गया 7। तो x की वैल्यू मिल गई। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल, अदर वेरिएबल इज y by substituting this value। now put x is equal to 7। कौन से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं बताओ, इक्वेशन, चलो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुट x is equal to 7 in equation 1। now what is the equation 1, what is the equation 1 student, this is equation 1, y minus 2x, y minus 2x and the value of x is 7, this is equals to 4। y minus 2 7 जा 14, this is equal to 4। y is equal to 4 minus 14 taken this side plus 14, therefore y is equal to 18। okay student, now we get the value of x and y। x को क्या कंसीडर किया है, न्यूमरेटर, y को क्या कंसीडर किया है, डिनोमिनेटर। therefore required fraction is फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द फ्रैक्शन। स्टूडेंट सेपरेट वैल्यू वी कैन नॉट कंसीडर फ्रैक्शन, देन वी विल राइट द आंसर इन फ्रैक्शन फॉर्म। ओके स्टूडेंट, देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज
रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज। अब फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे आप, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में। तो न्यूमरेटर क्या आपने कंसीडर किया है, देखो न्यूमरेटर बी एक्स, यक्स को क्या लिया है न्यूमरेटर, तो यक्स की वैल्यू कितना 7 इज न्यूमरेटर एंड y इज डिनोमिनेटर, मींस आंसर इज 7/18। ओके स्टूडेंट, दिस वन इज क्लियर। अब आंसर आप चेक करेंगे, फर्स्ट कंडीशन क्या दिया था बताओ, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर के डबल से भी 4 ज्यादा है, तो न्यूमरेटर इसका कितना है 7 है, 7 का डबल करेंगे कितना 14, तो 14 से देखो ये 4 ज्यादा है। सो स्टूडेंट आंसर इज करेक्ट। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन।